کر کے میاں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے یہ بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین کی دعوت پہ آنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ مل کے بیٹھے ہیں۔ میں میاں صاحب کی صحت کی بھی دعا کرتا ہوں اور ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ان کی صحت جلد بہتر ہو جائے گی اور وہ ہم سب میں ہوں گے، اور پھر اس وقت انشاءاللہ تب تک اللہ ان کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ یہ اے پی آواز سی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے میاں صاحب۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ اے پی سی میری نظر میں بہت پہلے ہونی چاہیے تھی۔ شاید میں اگر جیلوں میں مولانا صاحب نے نہیں بھیجا ہوتا اور شاید میں ہوتا تو آ جاتا پہلے، مگر کیا کریں، مولانا صاحب کا کام یہ ہے کہ کسی کو آسرا دے کے اس کو کہنا چل میں آ رہے ہیں، سمجھے۔ تو دوستو اس اے پی سی کے کامیابی کا جو صحرا ہے وہ آپ سب کے نظر ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اے پی سی کے خلاف جو چغلیاں کر رہی ہے حکومت، جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے حکومت، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ میاں صاحب کو وہ ٹی وی میں لائیو نہیں دکھا سکتے، جنرل مشرف کو دکھا سکتے ہیں، میرا انٹرویو بین کیا جا سکتا ہے پارلیمنٹ سے، پر وہ ایک ڈکٹیٹر جو بھاگا ہوا ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الزام میں، اس کا انٹرویو دکھاتے ہیں، وہ ان کے لیے ناپاک نہیں ہے۔ ہم جمہوریت میں یقین رکھنے والے سب ناپاک ہیں۔ تو دوستو یہ حالات آج کے ہیں، مگر ہمیں پیمرا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں لوگوں کو پتا ہے، لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور سنتے رہیں گے، چاہے یہ کتنا بھی ہمیں زرگوب نہ کریں، کتنا بھی ہمیں بند کرنے کی کوشش کریں۔ جب سے ہم سیاست میں ہیں ہم نے کبھی یہ عالم نہیں دیکھا کہ اتنی ٹی وی پہ بینڈ ہو، اور جس طرح ایک سی او کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ایک ٹی وی کو بین کیا ہوا ہے 24 کو پنجاب سے، لاہور سے، تو یہ سب ان کی کمزوریوں کی نشانیاں ہیں۔ ہم اس کو ان کی کامیابیاں نہیں سمجھتے، اور یہ چاہے کچھ بھی سمجھیں یا کریں، ہمیں ان کی یہ کمزوریاں نظر آ رہی ہیں۔ آج کل کی میڈیا کو بین کرنا اور بین رکھنا تقریباً امپاسبل ہے۔ نیٹ پہ آج کل بلوچستان کا بچہ بھی جو ہے وہ فون پہ بات کرتا ہے اپنے دل کی، کے پی کا بھی کرتا ہے، سندھ کا بھی کرتا ہے، اور پنجاب کا، ساؤتھ کا، ہر جگہ کا کرتا ہے، گلگت بلتستان کا بھی کرتا ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے اور بھی خوشی ہے کہ آج ہماری بیٹی مریم بی بی بھی یہاں ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں۔ وہ ہماری بیٹی ہیں، میاں صاحب کی بیٹی ہیں، قوم کی بیٹی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان نے کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ میری خود بہن جیل گئی ہیں، میری بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ جیل گئی تھی، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان درندوں نے ان کے ساتھ کتنی تکلیف کے ساتھ ان نے گزارا ہوگا، مگر میں ان کو بھی سلام بھی کرتا ہوں، مریم بی بی کو، اور ان کو کہتا ہوں کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، انشاءاللہ ہم آپ کی آواز اٹھاتے رہیں گے، ہم آپ کا کاز جو ہے اس پہ لڑتے رہیں گے، اور آپ بھی ہماری کاز پہ لڑتی رہیں گی، اس کا مجھے یقین ہے۔ یہ ہماری کوئی پہلی اے پی سی نہیں ہے۔ 1996 میں بھی 2006 میں بھی بی بی صاحبہ نے سعودی عربیہ جا کے میاں صاحب کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا۔ اس چارٹر آف ڈیموکریسی سے ہم نے ایک ہم آہنگی بنائی تھی، جس میں ہم نے مشرف کو بھی گھر بھیجا، اور ساتھ ساتھ ہم نے 18th امینڈمنٹ بھی پاس کی۔
18th अमेंडमेंट हमने एक दीवार बनाई है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के गिर्द, ताकि कोई मैली आंख रखने वाला अंदर से या बाहर से पाकिस्तान को कमजोर न कर सके। मगर अफसोस ये जो ना समझ हैं, जो सियासी बोने हैं, जिनको सियासत का पता नहीं, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की सोच एक समझो कि मेजर की सोच है और किसी की सोच नहीं है, और वो समझता है कि वो हमारी 73 से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके वली खान से लेके मौलाना मौदूदी से लेके उस जमाने के लीडरों से वो ज्यादा होशियार हैं, और उन सब ने मिलके 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, और उनके ही नक्शे कदम पे चलते हुए हमने 18th अमेंडमेंट बनाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे। तो उस मुलाकात का मुझे इंतजार भी रहेगा। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी और अर्ज होगी कि आप इस APC में कोई लाए अमल तय कर लें, ऐसा लाए अमल तय करके हमें दें कि हम आगे चल के उससे जमहूरियत को मजबूत कर सकें और जमहूरियत को आगे बढ़ा सकें। इसलिए कि पहली बुनियाद जमहूरियत है, हर चीज की पहली बुनियाद मुल्कों की जमहूरियत होती है, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होगी, उसके बाद आप जाके कोई और काम करेंगे। मगर ये ऊपर से आके और नीचे समझते हैं कि हमने जमहूरियत कर दी, ये कोई जमहूरियत नहीं है। इस तरह मुल्क नहीं चलते। हम बलोचों के कॉज के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, और दूसरी कौमों के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। 18th अमेंडमेंट में सबसे ज्यादा अगर हिस्सा मिलता है तो पंजाब को मिलता है। हम पंजाब के साथ भी हैं, हम साउथ पंजाब के साथ भी हैं, हम पूरे पाकिस्तान के साथ मिलके हुकूमत शेयर करके, अपने सोचें शेयर करके और फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने हमेशा दोस्तों को अपनी जगह पे अपने से ज्यादा तरजीह दी है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि दोस्तों का उठना, हमसे बैठना, हमें बताना, हमें एडवाइस करना हमें कबूल है। ये जमहूरी थी ताकतों का, बाकी ताकतों के खिलाफ में मुझे एक जो मेरे से पहले था तख्त नशीन इस तख्त पे, वो कहता था कि आपने फॉरेन ऑफिस से पूछ लिया है। मैं उसे कहता था नहीं सर, मैंने फॉरेन ऑफिस को बता दिया है, उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। तो ये सोच नहीं सकते उस जमाने के जो हालात थे, उस जमाने में जितनी इश्यूज थे, उस जमाने में जो जंगें लड़ी जा रही थी। खैर, ये तो बहुत बड़ी बहस है और लंबी बहस है, आप बहुत दोस्त आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक शायर की छोटी सी शायरी से इसका इख्तिताम करूंगा। मेरी दास्तां हसरत वो सुन सुन के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझको आजमा के रोए। ये मेरा मैसेज है पाकिस्तान की आवाम के लिए, और इंशाल्लाह हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं, हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है, हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है, और इंशाअल्लाह फैज की आवाज में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया सदर ज़रदारी साहब। अब हम लंदन से दावत देते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, मेरे भाई मोहम्मद शबाज शरीफ साहब, जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, मोहतरम साजिद मीर साहब, जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब, जनाब मोहसिन खान दावर साहब, जनाब जमालुद्दीन साहब, जमालदीनी साहब और जनाब अवैस शाह नूरानी साहब, नहायत मुअज़्ज़िज़ कायदीन, मोहतरम शुरकाए कॉन्फ्रेंस और मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम आसिफ जरदारी साहब, अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और खैर व बरकत अता फरमाए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी हैं। उनसे परसों बात करके मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छी हमारी बातें हुई और जिस प्यार मोहब्बत से उन्होंने मुझसे बात की मैं कभी नहीं भुलाऊंगा। मैं कॉन्फ्रेंस के मेज़बान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान साहब का और तमाम मुअज़्ज़िज़ कायदीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात कहने का आपने मौका फराहम किया। मैं वतन से दूर होते हुए भी अच्छी तरह जानता हूँ कि वतन अजीज किन हालात से गुजर रहा है और अवाम किन मुश्किलात का शिकार हैं। ये कॉन्फ्रेंस नहायत ही अहम मौके पर मुनक़िद हो रही है, बल्कि मैं तो इसे एक फैसला कुन मोड़ समझता हूँ। पाकिस्तान की खुशहाली और सही मानों में एक जमहूरी रियासत बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह की मसलियत छोड़कर अपनी तारीख पर नजर डालें और बेबाक फैसले करें। और आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? मैं मौलाना फजल रहमान साहब की सोच से पूरी तरह मुत्तफिक हूं कि हमें रस्मी और रवायती तरीकों से हटकर इस कॉन्फ्रेंस को बामकसद बनाना होगा, वरना कौम को बहुत मायूसी होगी। और जो अभी ट्रेंड जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सेट किया है, इसी को आगे लेके चलना है। आप सब जानते हैं कि 73 बरस से पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है। इन मसाइल की बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है, और मैं अपने तजुर्बे से बोल रहा हूं। मेरा भी तजुर्बा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान को जो मैं वजह बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। जमहूरियत की रूह अवाम की राय होती है, यानी मुल्क का इंतज़ाम वो लोग चलाएं जिन्हें अवाम अपने वोटों की अक्सरियत से ये हक दे। और हमारे आइन की इब्तिदा भी इन्हीं अल्फाज से होती है कि अल्लाह ताला ही कायनात का हाकिम मुतलक है, जिसका कोई शरीक नहीं
उसके तय करदा हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत का दर्जा रखता है। आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। दुनिया भर की जमहूरियतों का यही असूल है। जब जमहूरियत की इस बुनियाद पर ज़रब लगती है और वोट की इज्जत को पामाल कर दिया जाता है तो सारा जमहूरी अमल बिल्कुल बेमानी और जाली होकर रह जाता है। जब अवाम के मुक़द्दस अमानत में खयानत की जाती है और इंतखाबी अमल से पहले यह तय कर दिया जाता है कि किसको जिताना है और किसको हरवाना है, इंतखाबात में धांधली से मतलूबा नताइज हासिल कर लिए जाते हैं और रही सही कसर हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ में निकाल दी जाती है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम को धोखा दिया जाता है और अवामी मैंडेट कैसे चोरी किया जाता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजर्बात की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया गया है कि कोई नुमाइंदा हुकूमत बन भी गई तो उसे हर तरह की साजिश के जरिए से पहले बेअसर और फिर फारिग कर दिया जाता है। इसमें यह भी परवाह नहीं की जाती कि इससे रियासती ढांचा कमजोर होगा, अक़वाम आलम में जग हंसाई होगी और अवाम का रियासती इदारों पर से एतमाद उठ जाएगा। ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। हर डिक्टेटर ने औसतन 9 साल गैर आईनी तौर पर हुकूमत की, जबकि अवाम के वोटों से मुंतखब वज़ीर आज़म को औसतन 2 साल से ज्यादा का अरसा शायद ही मिला हो। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया, आर्टिकल 6, लेकिन उसके बाद भी 20 साल जर्नैली आमरीत के नजर हो गए। ख़वातीनो हज़रात और जनाब सदर, जब एक डिक्टेटर को आइन शिकनी के जुर्म में पहली बार अदालत के कटहरे में लाया गया तो आपने देखा क्या हुआ। क्या हुआ? मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जिस तरह हर माशल्लाह को अदालतों ने जायज करार दिया, डिक्टेटर्स को आइन से खिलवाड़ करने का इख्तियार दिया, 3-3 सालों के लिए दिया, उसी तरह 2 बार आइन तोड़ने वाले को बरियत का सर्टिफिकेट भी अदालतों ही ने दिया। उसे एक दिन तो क्या, 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। पूरी दास्तान है मेरे पास जो किसी वक्त सुनाऊंगा कि कहां से कहां ले गए, जबकि आइन पर अमल करने वाले अभी तक कटहरों में खड़े हैं और जेलों में पड़े हैं। हमारी तारीख में तकरीबन 33 साल का अरसा फौजी आमरीत की नजर हो गया। यहां सिर्फ एक डिक्टेटर पर मुकदमा चला, खसूसी अदालत बनी
कार्रवाई हुई, उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई, लेकिन क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या हुआ? क्या मुजरिम गिरफ्त में आ गया? क्या सजा मिली? ये सब तो दूर की बात। हुआ तो ये कि अदालती सिरे से गैर आईनी करार दे दी गई। यहां कोई ये अनहोनी बात नहीं, यानी पाकिस्तान में ये कोई अनहोनी बात नहीं कि किसी डिक्टेटर के बड़े से बड़े जुर्म पर भी कोई कार्रवाई ना हो, और अगर हो भी जाए तो कोई उसे छू भी ना सके, और अगर कोई फैसला आ भी जाए तो सिर्फ सजा ही नहीं, अदालत को भी हवा में उड़ा दिया जाए। लेकिन आखिर कब तक? कब तक? इसके बरक्स उन सियासतदानों को देखिए जो अवाम के वोटों से वजीर आजम बने। कोई कत्ल हो गया, कोई फांसी चढ़ गया, कोई हाईजैकर बन गया, चोर और गद्दार करार दे दिया गया, किसी को जलावतन कर दिया गया, और कोई उम्र भर के लिए नाअहल हो गया। उनके गुनाह और सजाएं खत्म होने में आ ही नहीं रही। वो झूठे मुकदमात में अपनी माओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ पेशियां भुगत रहे हैं। दरअसल ये सलूक पाकिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है, और सजा भी पाकिस्तान के अवामी को मिल रही है। आप में से अक्सर को हुकूमत का भी तजुर्बा है। आप जानते हैं कि अवाम की हमायत से कोई जमहूरी हुकूमत बन जाए तो किस तरह उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, और किस तरह अवामी नुमाइंदों की तजलील और तहकीर होती है, किस तरह